صدی میسر کیا مجھے میری سہولت کو پہنچی. میں اس پروفیسر ہوں پروفیشنل میں اور اپنی لیکچرز کا آغاز میں وشالی سے کرتی ہوں. تو مجھے یہ بہت پسند ہے کہ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھوں. تو آج بھی میں اسی سے اس کا آغاز کر رہی ہوں. یہ اتھر لیک کے لیے بولنا بہت مشکل ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو ایک ایکسپرٹ نہیں ہے جس پہ بات کی جائے. اتھر صاحب کے ہر ادا اس قدر خوب سے خوبصورت تھی. ایسے بندے ایک انعام ہے جو اللہ نے مجھے اتھر کی صورت میں مجھے عطا کیا. ایسے بندے زندگی میں وہی جیسے آپ سب ہیں تو اس قدر تعریفیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ گھر میں کوئی تذکرہ نہیں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کیا کیا تعریفیں بٹور کے آ رہا ہوں. ایک یہی ہوتا ہے نا کہ گھر میں آ کے پھر باتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ گوسپس ہوتے ہیں آج یہاں یہ ہوا وہاں ہوا. لیکن اصل میں خوبی یہ تھی کہ آج کے اپنی کوئی بڑائی اور پھر میں اگر کالج کے کوئی واقعات سنانی ہوتی تو بس بہت ہو گیا. تو مطلب یہ کہ بچوں کو مجھ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑائی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سب سے بڑی میں آپ لوگوں کو بات بتا رہی ہوں کہ گھر میں کوئی ایسی چیز جس میں یعنی اب آپ حیران ہوں گے سنیں گے جنازے میں جو پورے سب نے اپنی محبت کی انتہا کی ساری دنیا موجود تھی. تو میرے رشتے دار کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتھر عاشق کے بڑے آدمی ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے کبھی اپنی کوئی بھی شان کوئی اپنی بڑائی سننا پسند ہی نہیں کرتا تھا. تو بس اب میں آپ اسی سے اندازہ کر رہی کہ گھر میں ماحول اس قدر اچھا ہے. ہمارے گھر میں کبھی کسی کی برائی ہوئی نہیں ہے. تو جو بیٹھ کے ہوتا ہے کہ فلانی جگہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں تھوڑی سی پریشان ہوئی ایک دفعہ. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جو پولیس ہیں ان سے کہ میں بڑی پریشان ہوتی ہوں بچے بہت شریف ہیں. تو اگر جو زمانہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ بچے اس قدر شریف ہیں کہ انہیں کچھ ایسی ویسی باتیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو آپ پریشان نہ ہوں. تو وہ بات مجھے بہت پسند آئی تو میں مطمئن ہوئی. تو یہ بھی یہ ان کا گھر کا پہلو تھا کہ جو گھر کا ماحول تھا. ابھی بات کر رہی تھی یہ جو بول رہے تھے تو اس میں کیریکٹر کی بات ہوئی. رضالہ آپ بول کے گئی ہیں تو تمہیں شاید پتہ ہی نہیں کہ جب نیوز ایڈیٹر نہیں میگزین ایڈیٹر تھے. میگزین اور خواتین کا صفحہ ساتھ ہی ہوتا تھا. تو اس وقت کی میں بات بتا رہی ہوں بہت پہلے کی. تو میگزین میں ہوتا ہے مجھے معلوم ہوا کہ میگزین میں تو پہلے مضامین دے دیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جیسے نیوز ایڈیٹر وغیرہ تو آخری صفحہ جانے تک آخر میں ہمارے اندر جو ٹسل ہوتی تھی وہ یہی کہ زندگی میں کبھی اتھر 2 بجے سے پہلے گھر نہیں آئے. سب چاہے وہ بارش ہو آندھی ہو کرفیو لگا ہوا ہو جو وقت ہے اور نہیں آئے تو پھر رات میں وہیں پر آفس میں رک گئے. تو میں اس وقت کا واقعہ بتا رہی ہوں کہ بھائی میگزین ایڈیٹر تو دلی اٹھ کے آ جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں آتے. تو کہنے لگی وہ اکیلی لڑکی بیٹھی ہوتی ہے تو میں وہ جو کمپوزر وغیرہ میں یہ ساتھ میں اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا. شاید یہ بات اتنی زندگی میں تم نے تمہارے کانوں تک کبھی نہ پہنچی ہو. میں آج بتا رہی ہوں کہ اس آدمی کو اس بات کا بھی اتنا خیال رہتا تھا کہ میں تو چلا جاؤں گا تو وہ میگزین ایڈیٹر جو بیٹھی لڑکی ہے تو وہ اکیلی جو نہیں رہے. اسی طرح سے اب جو بات ہو رہی ہے تو ابھی مجھے یاد آیا کہ چھپنے کی بات. میں ہم سعودی عرب گئے مظفر میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر اردو نیوز کا میگزین سیکشن تھا. تو اب میں یہاں پر روزانہ کالج جانا 2 بجے واپس آنا. اب مجھے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہو رہی ہوتی تھی کہ اتھر صاحب آفس چلے گئے تو ان کے کتنے دنوں میں وہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو وہ کر چکے تھے کہ
मतलब रूटीन उनका फिक्स था। वहीं से लोग उनको उठाकर डिफरेंट पार्टीज में ले जाते थे। अब हम बैठे हुए हैं और मियाँ वापस आए तो कुछ कहीं जाएंगे, कोई बातचीत हो, तो फिर मैंने क्या किया कि आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। अब अकेली बैठी हुई ये काम कर सकती थी, तो मेडिकल में फील्ड थी, तो मैंने वहाँ पर मेडिकल पे बहुत आर्टिकल लिखे जो अपने घर से निकल रहे होते थे। तो एक आर्टिकल 3-4 सफ़े उनको मैं थमा देती थी, बगैर कुछ कहे वो लेकर चले जाते थे। अच्छा, उन आर्टिकल पर मेरा नाम नहीं लिखती थी, कोई अक्षर को दे रही हूँ, तो छापने वाले बंदा तो वही है। तो इस तरह से अच्छा, कभी मैंने पूछा नहीं पलट के तो, क्योंकि देखिए ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पूछना पासना ये तो लड़ाई के दरवाजे हैं ना जो खुलते हैं। मेरे और अक्षर की लाइफ में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हमारे दरमियान कोई लड़ाई का दरवाजा नहीं था जो खुले। अगर मैं पूछती तो बताया जाता कि नहीं मुझ अपने काबिल नहीं था, व्हाटएवर, तो मैं जवाब में कुछ बोल देती तो फिर तो दिल में फर्क आ जाता ना। तो बस इस तरह से आर्टिकल जाते रहे। और अच्छा, एक दिन जब मैंने अखबार खोला तो धमाका ये था कि उसमें मैं छपी हुई थी उर्दू मैगजीन में। ऐसे छपे कुत्ता उन्होंने बताया कि मैं छुट्टी पर था, तो अच्छा तो वो जो था कि मेरे से सारे आर्टिकल रखे होते थे। अच्छा, उसमें मैंने वेट लॉस पे आर्टिकल लिखा था, डाइट पे। तो कहने लगे कि मैं छुट्टी पर था, तो फिर हुआ ये कि वो जो मैगजीन दूसरे थे नहीं, तो नहीं मतलब ने जो आर्टिकल जाके मेज में से उठाए तो ये उनको पसंद आया। तो उन्होंने अगले दिन अथर को कंपोज करवा के रख लिया। अगले दिन अथर को दिया कि इसमें लिखारी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो उसमें फिर वो लिखारी का नाम देकर नईम ने वो आर्टिकल छपवाया। तो इस तरह से आप लोग फिर तो मैं ऐसी छपी केवल छपती गई माशाल्लाह। जिस दिन मैंने छपती तो फोन आ जाता था कि क्योंकि उन लोगों को जैसे मुझे वो थे जफर इकबाल, उनकी बेगम ने कहा मैंने आर्टिकल डायबिटीज पे लिखा था, तो उन्होंने कहा कि भाभी ऐसा मैं पता नहीं कब से इसमें मुब्तला थी, लेकिन आपने जो सिम्टम्स लिखे थे तो वो ऐसा लगा कि जैसे पूरे के पूरे मुझ पर वो आ रहे हैं। तो उसके लिहाज से मैंने फिर जाके टेस्ट करवाया तो वो शुगर निकली। तो इस तरह से लोगों ने बहुत पसंद किया मुझे। तो बस ये मैंने कहा कि आपको अंदर की बात तो बताऊं कि कभी भी किसी बच्चों को मेरे लिए एक लव स्वीट डॉग बहुत मैंने मुसीबतें झेली। फौजी को बोला कुछ ऐसा मसला, तो डॉक्टर शाकिर अली जाफरी थे बायो के प्रोफेसर, नहीं आपके साथ तो नहीं लो, तुम्हारे साथ तो कोई मसला नहीं है। मियाँ एक फोन कॉल, जैसे आजकल का माहौल है हमारे यहाँ का, एक फोन कॉल करेंगे और आपका प्रमोशन हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई कमी हो तो फोन कॉल करे ना मियाँ। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने एक लफ्ज कहा कि मुझे हमारे हम लोग जो जीते हैं ना तो कांटों में जीते हैं। अब कोई मर जाता है तो कांटा छूट जाता है, उस कांटे के साथ हमें सारी जिंदगी जीना होता है। अब वो अतर साहब ये बात उन्होंने कह दी। अब मैंने आगे वो बात आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि वो मुझे पता था कि वो नहीं करेंगे। उनका तो ये कहना कि अगर कोई कमी हो तो उसको आगे बढ़ाया जाए। आज माशाल्लाह मैं प्रोफेसर एचओडी सब सारी खूबियों के साथ मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन में बैठी हूँ, लेकिन वो मेरे दिल में तो कांटा चुभ गया ना कि मैंने फोन नहीं किया मेरे लिए, मेरे प्रमोशन के लिए कोशिश नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा इन चीज़ों को अवॉइड करती रही। ये अल्लाह की शायद वो जो तोहफा था उसका शान थी ये जो भी था, और मैं उनसे रूबरू कभी जिंदगी भर नहीं हुई कि मैं कुछ जवाब देती तो जवाबन मुझे कुछ अथर के मुंह से सुनना पड़ता। तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी शान ये है कि मुझे अथर के मुंह से कभी भी कोई ऐसा वैसा लफ्ज सुनने को नहीं मिला। जो आप लोग उनकी खूबियां बयान करते हैं उसमें कंटिन्यूशन में ये बात मैं बता रही हूँ कि ये चीज बहुत वाकई में, और मैं आई एम नाउ मोटिवेटिव स्पीकर। इतनी जिंदगी गुजर गई वो भी ऐसी 2-3 जगह पे, तो मैं
पूछती हूँ कि वो थे एहसान अली शाह, उनकी शादी थी तो उनके कुछ बट्टा सट्टा था तो वादा ने इनकार कर दिया। अब उन्हें अपनी पसंद की शादी करनी थी तो अथर्जी साहब के पास आए, उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है। तो अथर्जी साहब के सिर्फ एक तनख्वाह है मेरी, बस मैं तुम्हें वो तनख्वाह दे दूंगा, उसके पास तो बैंक अकाउंट मेरे पास है ही नहीं। तो वो ऑफिस में एहसान को तनख्वाह देकर घर आए। अब आप सोचिए किराए का मकान, बच्चों की फीसें, सारी चीजें, तो मुझसे कहने लगे कि अब इस महीने में तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। अब मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बात मैं अब लोग अपने दोस्तों से पूछती हूँ कि अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारे यहाँ आके कह देगा माशाल्लाह, कोई बात है ना कि दोनों एक ही जैसे एक ही मोहब्बत में इंसान हो तो बहुत बातें सोचने को होती हैं। तो मैंने कहा तुम लोग क्या जवाब दोगे? तो मेरी दोस्त ने कहा कि जब अब्बासी मुझे इस तरह से कुछ कम पैसे देते थे तो मैं पैसे उठा के यूपी देती थी। तो दूसरे ने कहा कि सवाल ही नहीं होता मैं उसको हाथ लगाऊं, मैं तो कभी हाथ में नहीं दिया है। तो मैंने कहा माशाल्लाह मैंने वो पैसे कभी अतर को कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है उसको जरूरत थी, सब उसकी इम्पोर्टेंट बात यही थी। और मैं नजर उस आदमी की आंखों में जो मैं रिस्पेक्ट देती थी ना आखिरी में, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये सब चीजें अपने छोरों के दिल में जाके बहुत इज्जत पैदा करती हैं। हम लोग जो समझते हैं कि बहुत हम एक अपने उसके लिए फाइट कर रहे हैं बहुत औरत हो गए। आज मैं तो सबको ये बताती हूँ कि कभी अपनी सास के लिए अगर कुछ मियाँ करना है तो नहीं कभी ना रोको, जो जिसकी तकदीर है वो उसको मिलेगा। तो शायद ये सब अदब के साथ रहने का असर है। ये बात इसलिए सुना रही हूँ कि जैसे महफिल होती है, जैसे आपकी सिटिंग होती है, वही चीजें आप सीखते हैं। तो मेरे नजदीक भी तो ये चीजों की कोई कभी अहमियत नहीं थी। तो उसका ये रहा कि वो आदमी माशाल्लाह आखिरी वक्त तक मुझे इसी तरह से इज्जत देते रहे। आप कब आ जाते हैं आपके पास कि बहुत ऐसे शागिर्दों को अल्लाह सलामत रखे, चुन चुन कर अल्लाह जो जितने बैठे हुए हैं उनको उनके मकान में आला बदलियत अता फरमाए। और जिसने अथर की जो मिशन था उसको आगे बढ़ाया। तुमने कोई मामूली काम नहीं किया है, तुमने अथर के जो मिशन को आगे बढ़ाया। जो उनका एक एम था कि बस अब्बा को बैठे हुए एक ऐसा आदमी जो मतलब बताए तो लफ्ज यूज किया, क्या लफ्ज यूज हो रहा है के लिए दरवेश सिफत। तो मैं दरवेश सिफत से भी और आला कोई चीज समझती हूँ, तो क्योंकि वो दुनिया में भी है, ये नहीं है कि उसने तो दुनिया के सारे कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन उस बारों के उसमें बैठा हुआ है, अब उसमें पढ़ने में, लेकिन उसको हर चीज का पता है। हमारे फैमिली के लिए भी सायादार ऐसे ही कि उसके एक एक बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस का बात का पता है। माँ से कोई बात नहीं करते हैं, वो दोस्त हैं जो किसके हैं, बाप के दोस्त हैं। अब कहीं भी जा रहे हैं अब्बा को बता के जा रहे हैं। तो इस एक पूरी इंसान में छोड़िए उस आदमी में तो हर चीज मौजूद है, हर खूबी मौजूद है। तो वो माँ को अहमियत से ज्यादा वो बाप के दोस्त है। अभी हमारे घर में अतर का जाना बहुत बड़ा सानिया है। इतने कदावर शख्सियत को रुखसत करना जाहिर है घर वालों का क्या आलम होगा। लेकिन मेरे तीनों बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे पोता पोती सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे इस गम को समझा। वरना तो मैं तो सोची ना कि जीना ही मुश्किल था। लेकिन वही बातें मेरी प्रिंसिपल कहती थी, मैडम ये सब गलत है, हमें आपकी बहुत जरूरत है।
आप अपने आप को संभालें। तो समझना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आप सब लोगों ने जो बताओ कि मुझे ये बताओ ना कि कहीं पर इस तरह की मोहब्बतें नजर आएंगी जो अंतर्राष्ट्रीय के लिए आप लोगों के दिलों में है। इस हर बंदा, ये हमारी 5 ही वो है, समझिए बरसी। तो मैंने तो एक बरसी के बाद भी सारे दिए बुझते देखे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि 5 बरसियों तक इस तरह से बैठ के हम लोग उसका खूबियों का जश्न मना रहे हैं। तो ये सब आप लोगों के दिलों की मोहब्बत है। वो आदमी जो दिलों को फतह कर ले वही फातेह है ज़माना। मैं आपको सबकी मोहब्बत में कहा है, तो मैं इसके लिए ये कहूँगी कि जिस तरह से अतहर ने मोहब्बतें की, तुम लोगों ने कोई जो आप में कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी किताब के शक्ल में तो कभी किसी और शक्ल में। हमेशा ये जो बात है वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि ऐसे मैंने दिलों में रहता हुआ बंदा कहीं पर भी नहीं देखा। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया।